Hi guys, I'm waiting for everybody to join. Acha, a quick check. Am I audible and visible? Nothing is blurred. Everything is good. Just comments में बता दो that you can see me. Hi. Cool. Let's start then. We have few people. Hi, welcome to the 7th episode of Guftagu, and I hope you all are good and keeping it safe indoors. Okay, let me start with an introduction of Alchemy. So, Alchemy is a theatre group founded by alumni of IIT Delhi and MNIT Allahabad. Satyam Gangwar, Pawan Bahirwani, Omkar Nath Gupta, and Nikhil Chaudhary. We started our journey on 7th October 2018 and have done 32 shows across 5 cities and have 75 active members associated with us. I'm Vanisha Pandir, member of Alchemy Theatre Society and an alumni of IIT Delhi. I'll be hosting this session for you today, and thank you Alchemy for giving me this opportunity, and thank you all for joining me here. Okay, we'll be starting our session shortly. I'll be adding our guest, Mr. Rajesh Berry, and an announcement that you can ask your questions in the comment box. We'll be picking up the questions, okay, towards the end of the session or in between also. So you can ask your questions. Now, introduction about our guest. Let me give you a brief introduction about Mr. Rajesh Berry. Rajesh Berry is an Indian television and film screenplay writer. He has an immense experience in the field with 45 plus TV shows, 800 plus episodes of crime show Savdhan India, and a biographical film Sarabjit in his credit. He has a record of writing 1350 episodes of serial Bhabi, which featured him in Limca Book of World Records. Rajesh Berry has been a crucial member of Writers Association for 20 years, and now you can also hear his stories from Saregama Karwa stories, which we'll talk about in our session. I guess we can add him now. It's time. Let's add him. I have requested him. Sir, please accept. Let me try again, maybe. ठीक है, जब तक सर आते हैं. I'm very good. कैसे हो आप? I'm good. Hello, hi. जब तक सर आते हैं मैं कुछ अनाउंसमेंट्स कर देती हूँ. हमारा एक कंपटीशन चल रहा है फॉर किड्स. इट्स अ मोनोलॉग कंपटीशन फॉर किड्स, नाट सम्राट. द डेडलाइन इज 18th May. तो you can send your entries, your cousins entries, your kids entries. Hi Pratulya.
प्रतुल्या का नाम लेने का अनाउंसमेंट आई है. सॉरी, प्रतुल्या, हाय. आई एम अगेन एडिंग हिम. ठीक है. Can you hear Yes. me? Yes, sir. Hi, sir. Hi, everybody. I very welcome you, sir. Thank you so Thank much you. for making time for Alchemy. We welcome you, sir. Thank you very much. Thank you. So, how are you, sir? How is I'm quarantine good. treating you? The same जैसा बाकी सब लोग हैं वैसे हूँ मैं. तो सर ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द वेरी जी बिगिनिंग. जी. तो सर आप स्टार्टिंग में रेलवेज में काम करते थे एंड साइड बाय साइड यू यूज्ड टू राइट पोएम्स और कवि या. सम्मेलन अटेंड करते थे. हाँ. तो व्हेन वाज द टाइम जब आपको लगा कि नाउ यू कैन क्विट योर जॉब एंड टेक द राइटिंग फुल टाइम, क्योंकि सरकारी नौकरी उस टाइम पे रेलवेज की नौकरी इट वाज अ वेरी सिक्योर जॉब विद अ गुड पे चेक. फिर मतलब कब ऐसे लगा आपको कि नाउ यू कैन क्विट एंड यू हैड द कॉन्फिडेंस? निशा देखो क्या होता है कि जब जब कॉलेज में थे जब हम इंजीनियरिंग कर रहे थे तो उस वक्त क्या होता था कि ऑप्शन होते थे कि आपके अगर 80% से ऊपर आए हैं तो आपको डॉक्टर या इंजीनियर बनना है. उससे जी नीचे जी आए हैं तो आपको बैंक में नौकरी करनी है. और उससे नीचे अगर आए हैं तो आर्ट्स लेने हैं तो उनको बोला जाता था ये किसी काम के नहीं है. जी तो जो ऑप्शंस आजकल अपॉर्चुनिटीज जो आजकल हैं वो तब नहीं होती थी. जी. तो अंदर हर इंसान के अंदर एक कलाकार होता है. हर इंसान के अंदर एक क्रिएटर होता है. रादर आई वुड पुट इट दैट वे. वो कुछ करना चाहता है. सो वो था हमारे अंदर लेकिन किसी ने रास्ता नहीं दिखाया. बस पापा ने बोला कि हाँ भाई एक काम करो सरकारी नौकरी होनी चाहिए क्योंकि वो भी सरकारी नौकरी में थे तो आप जी रेलवे ज्वाइन कर लीजिए. हमने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन दिए और ज्वाइन करने चले गए. जी. मुंबई आ गए दिल्ली से हाँ. मुंबई आ गए लेकिन वो अंदर वो कुलबुलाहट सी थी कुछ करने की. तो अच्छा. क्या करें. हाँ मतलब मैं ऐसे बिल्कुल नहीं आया था ये सोच के कि मैं एक्टर करने एक्टर बनने जा रहा हूँ या राइटर बनने जा रहा हूँ डायरेक्टर बनने. ऐसा कुछ भी दिमाग में नहीं था क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि करना क्या है. कि फिल्में उस वक्त हमारे लिए अमिताभ बच्चन, शशि कपूर, धर्मेंद्र मतलब ये आइकॉन से मतलब ये हीरोज थे हमारे लिए लार्जर देन लाइफ. यहाँ तक पहुंचना तो मतलब बात ही दूसरी थी. फिर हमने प्लेस करने शुरू किए रेलवेज के अंदर. ओके. तो प्लेस करने शुरू किए तो पता चला कि नहीं यार हम कुछ हट के भी कर सकते हैं. कुछ ओके. मतलब ये सुबह 8 से 5 की जॉब के अलावा कुछ और भी है अपने अंदर जिसको हमको इसको बाहर निकालना है. तो उस वक्त एक सीरियल आती थी बुनियाद, अगर कुछ लोगों ओके. को याद होगा. तो उसमें लोकनाथ जी का एक बड़ा डायलॉग था बड़ा अच्छा. तो मुझे बड़ा हिट कर गया कि उसमें वो कुछ अचीवमेंट करते हैं तो उसके दोस्त उसको बोलते हैं इसमें कुछ है, इसमें कुछ है, इसमें कुछ है. तो जब मैंने पहला प्ले किया तो मैं उसमें एक्टिंग करना चाहता था. मैंने एक्टिंग की, बड़ी मुश्किल हुई उसके बाद भी उसी ग्रुप छोटे से ग्रुप में भी आने के लिए. और क्योंकि सब लोग बोलते थे कि भाई आप लोगों का काम नहीं है, आप गाड़ियां चलवाइए और कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए. तो ओके. पर किया. उसके बाद पहले प्ले में बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिल गया. तो वो सब ने वही डायलॉग बोला मुझे इसमें कुछ है, इसमें कुछ है. तो बस अच्छा. वहां से शुरुआत की. पर क्या करना था ये समझ नहीं आ रहा था. फिर हमारे कुछ दोस्त हैं, मित्र हैं. फिर मैंने खुद प्ले लिखने शुरू किए. टेढ़े मेढ़े लिखता था, कुछ कविताएं लिखता था 4 शब्दों को जोड़ के. तो दोस्तों में सुनाता था. तो उससे हौसला मिला तो दिशा दिखी कैसे किरण दिखती थोड़ी सी छोटी सी कि हाँ यार यहाँ जाना है मुझे. पर तब ठीक भी है. कोई मार्गदर्शक नहीं था. किसी ने ये नहीं बताया. हमारे सीनियर थे ऋषि साहब. वो छोटे मोटे रोल करते थे, रेलवे में नौकरी भी करते थे, फिल्मों में रोल करते थे. तो वो कहते थे यार तू लिखा कर. तो हमने लिखना शुरू किया. फिर कविताएं लिखनी शुरू की. फिर कविताएं वो फंक्शंस होते थे रेलवेज के हमारे उसमें सुनाते थे. तो फिर थोड़ा सा हौसला बढ़ा कि भाई नहीं यार हम सुना सकते हैं. तो पहली बार मतलब स्कूल में हम प्ले करते थे. तो बचपन में होते हैं तो उस वक्त बचपन से फिर एक बचपन की बात हमारे दोस्त ने याद दिलाई. मैं एक चीज़ बताऊं आपको कि निशा क्या होता है कि आप जब भी कोई जिंदगी में काम करते हो चाहे लेखन है या कोई भी काम, जी हमेशा हमारे साथ एक शक्ति चलती है आपको मोटिवेट करने के लिए. वो आपके घर वाले होते हैं, आपके दोस्त होते हैं. आपको पहचानना होता है. और जी. कहीं ना कहीं कभी ना कभी कोई ना कोई दोस्त आके आपको बात कह देता है.
जी। तो बचपन में मुझे याद है कि एक हमारी किताब होती थी राष्ट्र भारती, तो उसमें एक किताब कहा कविता थी, हल्की सी कविता, मुझे याद है 8th में था मैं तब। तो आराम करो इससे न तपेदिक होती है, आराम सुधा की एक बूंद तन का दुबलापन खोती है, आराम शब्द में राम छुपा। ये कविता थी। तो वो वहां पर मैंने 8th में ये कविता कही, और पर वो कुछ याद बन के रह गई थी मेरे साथ। और मेरे एक मित्र हैं राजेश शुक्ला, जो बचपन से मेरे साथ हैं, तो हम्म, उन्होंने मुझे याद दिलाया कि यार तू कविता कहता है और बहुत अच्छी तरीके से कहता है, तू खुद क्यों नहीं लिख। अच्छा। तो मैंने कविता लिखनी शुरू की। तो कविता लिखनी, पहले छंद लिखते थे, हम्म, और फिर उसके क्या नाम है, हमने उसको एलॉबरेट करना शुरू किया, फिर उसमें रस डालने शुरू किए। तो कविता के भाव समझ आए। कोई सिखाने वाला नहीं था, पढ़ते थे। मैं गुलशन नंदा बहुत पढ़ता था। तो ठीक है। गुलशन नंदा जी एक तरह से मेरे गुरु हैं, तो मैं उनके नॉवेल्स बहुत पढ़ता था। तो उन नॉवेल से हमने कहानियां कैसे कही जाती हैं वो हमने लिखना सीखा, हमने लिखना शुरू किया। सो जी। ये चीजें जो हैं अपने जिंदगी में मेरे साथ सब जुड़ती चली गई, और फिर उसके बाद हमने कविता कहनी शुरू कर दी। अच्छा सर, आपने कविता की बात कही, आपकी कविता वायरल हुई थी रेडियो पे बैक देन। अब कुत्ते हो गए। सो कैन यू टेल अस अबाउट समथिंग अबाउट योर देखो, पोएम? या वो एक मतलब बात ऐसी थी कि 93 की शायद बात है, जब मुंबई में दंगे हुए थे। अच्छा। तो एक चीज मैं बताऊं आपको कि मैंने एक चीज सीखी है कि पहले कहानियां कैसे बनती हैं, किरदार कैसे बनते हैं, ये मैंने अपनी आप सोच के साथ इन्वेंशन किया। कि आपके साथ लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स जो भी होती, आपके दोस्त, आपके इंसान जो भी दोस्त होते हैं, वो कहीं ना कहीं किरदार बन के आपकी जिंदगी में आते हैं और कहानी कहते जी। हैं। हमारा एज ए लेखक या एज ए क्रिएटर, हमारे चक्षु खुले होने चाहिए हमेशा। जी। वो कुछ ना कुछ, कभी ना कोई कुछ कह के जाते हैं। तो ये जी। जब दंगे चल रहे थे, तो मैंने महसूस किया, जब ये ऐसे माहौल होता है, जैसे कोरोना चल रहा है आजकल, आप महसूस कीजिए कि उस वक्त क्या होता था कि पक्षी भी डर जाते हैं, कुत्ते भी डर गए, सब कुछ जानवर तक डर जाते हैं। तो उस दिनों हम भी इस तरह से हालात के साथ जूझ रहे थे, अपने साथ ही जी। रहते थे, एक इल्यूजन में जीते थे कि जी। भैया। तो अचानक वहां पर क्या हुआ कि हमारा एक दोस्त था, वो कोटा का, वो जाने लगा, तो उसको किसी ने उसे वार कर दिया। तो हम भी डर गए। तो हम भी डर गए, तो साथ में हमारे घर के बाहर एक कुत्ता था। अच्छा। तो बाकी सब तो कुत्ते कुत्ते की तरह देखते हैं, मैं हाँ। उसको किरदार की तरह देखता था। क्योंकि आप वो राइटर? रोज, नहीं मतलब ये अभी अभी तक मैं राइटर बना नहीं अच्छा। अभी तक बना नहीं। ओके। तो मैं उसको किरदार की तरह देखता था। और वो कुत्ता जो है 9 बजे रोज, उसको टाइम कैसे पता है, जबकि हम घड़ी देखते हैं, वो रोज 9 बजे मेरे घर के बाहर होता था, क्योंकि मेरी मिसेस उस वक्त उसको खाना खिलाती। उसको पता था कि ये 8:45 खाना खा लेंगे, 9 बजे मेरी बारी। जी। तो कुछ उन दिनों क्या हुआ कि वो ना, उसने खाना खाना बंद कर दिया। कालू कालू बोलते थे उसे। तो मेरी मिसेस ने कहा कि ये कालू ने खाना खाना बंद कर दिया। तो मैंने कहा अच्छा, मैं बात करता हूँ। तो ये सब हंसने लगे, क्या बात करेगा उससे। मैंने कहा बात करके देखता हूँ, कुछ जवाब जरूर देगा। और वो जी। जवाब वो होगा, मैंने उसकी आंखों में देखा। फिर कविता लिखी उसके ऊपर। तो कविता ये थी कि एक दिन जैसे ही था मैं घर में लेने को प्रवेश, देखकर चकित रह गया अपनी गली के कुत्ते का द्वेष। मैंने कहा क्यों इस तरह गुर्राते हो, मुझे देखकर क्यों तहश खाते हो, अरे दफ्तर से लेकर घर तक क्या कम आंखें सही हैं जो तुम मुझे आंखें दिखाते हो। छेड़ेंगे ना हम तुम्हें वचन देते हैं, क्योंकि हमको पता है कुत्ते अक्सर काट लेते हैं। तो सुनकर मेरी बात, पहले तो ढीली की उसने अपनी घात, और कहा मुझसे गहरा तो तुम काटते हो, प्यार की जगह नफरत तो तुम बांटते हो, किसी को मारकर, किसी को काटकर, किसी को जलाकर तुम आए हो, हैवानियत के नाम पर तुम हर जगह छाए हो, अरे सर से लेकर पांव तक खून में तुम भर गए हो, अरे कुत्ते से डर गए हो। हमने अपनी नस्लों के मिलाप से दिए हैं ऑल्सेशन, पोमेरियन और बुल जैसे मिक्स ब्रीड। इतना प्यार है हमें। हमने अपनी नस्लों के मिलाप से दिए ऑल्सेशन, पोमेरियन और बुल जैसे मिक्स ब्रीड, और तुमने कौमों के मिलाप से दिए आतंकवाद और अलगाववाद जैसे जहरीले सीड। हम अपनी नस्लों में कभी रखते नहीं भेद, पर रह न सके तुम अपनी कौमों से मिलकर, मुझे है सिर्फ इस बात का खेद। अरे अब हम गली गली जाकर झूठी हड्डी नहीं खाते। हम बदनाम करते ना कुत्ते को, गली गली जाकर झूठी हड्डी खाता है। कि अब हम गली गली जाकर झूठी हड्डी नहीं खाते, क्योंकि जगह जगह हार्ड मास जलता देख हमारे दिल वैसे ही भर जाते। अरे जो काम हमारे हैं वो काम हमसे मत छीनो। तुमने अब भी जो फूल कांटों का जंगल बुना है, कांटे हम ले लेंगे, तुम केवल फूल गिनो। हमने तुम्हारी वफा अब नहीं छोड़ी।
हमने तुम्हारी वफा अभी भी नहीं छोड़ी, तुमने खुद इंसानियत से मुंह मोड़ लिया है, अरे तुम आपस में काट काट कर लहूलुहान हुए जाते हो, इसलिए हमने काटना छोड़ दिया है। तो उपदेश सुनने के हम आदी नहीं रहे, पर कुछ हाथ शब्द उसके हमारे दिल को छू गए और यूं लगा वो इंसान और हम कुत्ते हो गए। तो ये कविता उस समय सोशल नेटवर्क तो नहीं होता था, हम स्टेज पे कहते थे, रेलवे में कहते थे, फिर ऑल इंडिया रेडियो गए जी। तो वहां पर ये कविता कही गई। तो उस वक्त क्या मतलब वायरल जिसको बोलते हैं, ये तो आज एक ये शब्द हमको हमको वायरल का मतलब तो होता था बुखार हो गया, ये तो हाँ। आज एक शब्द हमको समझ आता है वायरल का मतलब है कि भाई कोई भी जी। आप बात कहें तो वायरल बहुत होनी बहुत जरूरी है। पर उस वक्त मुझे याद है कि ऑल इंडिया रेडियो में मुझे बुलाया गया, सम्मानित किया गया, फूलों का गुलदस्ता मिला था एक, और फिर वो जो कविता थी वो दिल्ली ऑल इंडिया रेडियो भी गई थी, भोपाल गई थी, ये दो तीन जगह गई थी, तो इसको हम वायरल कहते हैं, ये वायरल हुई थी। जी। जी। एक्चुअली ये कविता अगर आप अभी लिखते तो वैसे ही वायरल होती बिल्कुल, और मतलब इन टर्म्स में जो अभी टर्म्स हम वायरल कहते हैं तो एक्चुअली वैसे ही वायरल होती। यार या ठीक है। सर आपने सरबजीत लिखी है, वो भी दैट इज अ बायोग्राफिकल ड्रामा। हाउ डिड दैट हैपन टू, हाउ यू थॉट कि ठीक है ये लिखते हैं हम, ये लिखेंगे हम? देखो, मैं हमेशा कहता हूँ कि किरदार बोलते हैं, किरदार अपने पास खुद चल कर आते हैं, आपको पहचानना होता है। जी। मैं 2008 की बात है, एंड तब तक मैं एक काफ़ी सीरियल्स लिख चुका था, और यू टीवी के साथ मेरा एसोसिएशन था, मेरी अपनी कंपनी थी जो यू टीवी के साथ जॉइंट वेंचर थी, तो मैं उन्हीं के ऑफिस में बैठा करता था। तो अचानक मुझे फ़ोन आया किसी का कि आपसे कोई लेडी आई है पंजाब से, वो मिलना चाहती है, पंजाबी फिल्म बनानी। मैंने कहा बुलाइए। तो आई, छोटी सी एक औरत थी, बलबीर कौर नाम उनका, उनके जी। साथ अंसार बरनी, जो पाकिस्तान के बहुत बड़े लॉयर हैं, जिन्होंने ये सोमालिया के कैदी छुड़वाए थे, और अपना ये कैमल जॉकीज जो बच्चे करते थे वो। तो मेरे पास आए, बैठे, तो कहते मैं ना एक पंजाबी फिल्म, मेरा भाई जो है पाकिस्तान में कैद है और बंद है। तो मैं तो जानता ही नहीं था उनको। जी। तो मैंने कहा क्या चाहते हैं आप मेरे से? कहते सर आपका नाम सुन के आए, आपसे मैं फिल्म लिखवानी। उनके साथ एक डायरेक्टर भी था। तो मैंने कहा जी पंजाबी फिल्म तो मैं लिखता नहीं हूँ। कहते नहीं आप यूट्यूब में हैं, आप उसको रिलीज़ भी कर लेंगे। मैंने बाहर निकल के रॉनी स्क्रू वाला जी से बात की, फ़ोन किया। मैंने कहा सर ऐसी सी बात है। तो उन्होंने कहा कि नहीं वी आर नॉट इनटू पंजाबी फिल्म्स राइट नाउ। सो मैं वापस आके उनको बोला सॉरी मैडम, मैं चाय वाय पिलाई, मैंने कहा कोई बात नहीं, तो आई एम सो सॉरी, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट ही नहीं था ना प्यार भी था उसके पास। तो वो अच्छा। उठ के दरवाजे तक गई और मुड़कर बोली कि मैं 18 साल से अपने भाई की तलाश कर रही हूँ, 18 साल हो गए मैंने उसको देखा नहीं, पर अच्छा। इतना पता वो जिंदा है। तो मैं खड़ा हो गया सीट से। कहते आपके घर में कौन कौन है? मैंने कहा मेरे घर में मम्मी पापा बच्चे सब हैं। कहते बस यही आशीर्वाद दे के जा रही हूँ कि आपके घर से कोई आपसे बिछड़े नहीं। तो पता नहीं जी। मुझे कि बात लग गई। मैंने कहा बहन जी आप बैठिए कुर्सी पे, मैं ये फिल्म लिख रहा हूँ चाहे कुछ। वहाँ से मैंने शुरुआत की, तो नेट पे काफ़ी जाना, फिर उनके गांव गया। मैं 4 साल तकरीबन आता जाता रहा, उनके साथ रहा 4 साल। मतलब उस दौरान तो मैंने बाकी सारे काम भी छोड़ दिए, रोनी साहब भी नाराज अच्छा। हो गए मुझसे। ओके। पर एक जुनून था, एक इमोशंस थे कि आई जस्ट वांटेड टू, मुझे ऐसा लगता था कि शायद मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं हूँ, मैं कोई आर्मी मैन नहीं हूँ, बट एक राइटर हूँ। एक राइटर के तौर पर, एक राइटर के तौर पर अगर मैं कुछ ऐसा लिख दूँ हम्म। जिससे ये आवाज़ दुनिया तक पहुँचे। हमेशा मैं बताऊँ, बड़ी हैरानी की बात है कि मैं जब वहाँ पहुँचा, उनके गांव में जी। मिला, जी। वहाँ एक सरबजीत नहीं था, वहाँ कई सरबजीत थी, कई ऐसी बहनें माएँ ऐसी थी। और आज भी हमारी गवर्नमेंट जो है, या हमारे जो लोग हैं सोसाइटी के इंडियन लोग, हम कोई नहीं जानता कि ऐसे लोग भी एग्जिस्ट करते हैं जो आज भी कई सालों से अपने लोगों का इंतजार कर रहे हैं जो वहाँ पर कैद हैं। जी। तो वो चीज़ छू गई मेरे को, एंड आई देन स्टार्टेड राइटिंग। काफ़ी ओके। रिसर्च किया, काफ़ी कुछ हुआ मेरे साथ।
बट फिर फिल्म का ये था कि फिल्म की स्क्रिप्ट तैयार की, 3 साल लग गए उसमें। मिस्टर राजेश नायर हमारे साथ थे, तो 3 साल लग गए उस पिक्चर को स्क्रिप्ट बनने में। तब तक हमने, वो यूटीवी बंद हो गया तो मैं बाहर आ गया। तो उसके बाद ये मुक्ता आर्ट्स में सुभाष घई जी के पास गया, बात पिक्चर बनाना चाहते थे, अच्छी लगी। तो ठीक है। पहले सिद्धार्थ रॉय कपूर के पास गया था मैं, तो उन्होंने बोला कि राजेश इसका एंड नहीं है, अच्छा, मतलब सरजी तो वही है, इसका एंड क्योंकि नहीं वो है, अभी तक छूटे नहीं थे। छूटे नहीं थे। तो ये 2011 में हम थे, तो मैंने कहा सर फिल्म तो है सर, वो होप तो छोड़नी पड़ेगी, कहते नहीं एंड होना चाहिए। फिर सडनली खबर आई कि सरबजीत इतना छूटने वाला है। अच्छा। मैंने कहा वेरी गुड। तो हमने कहा सर सब्जी छूटे वाला, तो उन्होंने फ़ोन जी। किया, मैंने कहा बहन जी मैं आ रहा हूँ। तो कहते जी बड़ी बड़ी बधाई हो सब कुछ। सो वहाँ जब मैं पहुँचा तो रास्ते में खबर आ गई कि जी सरबजीत में सुरजीत सिंह जी छूटे। यार जी। स्क्रिप्ट हिल गई मेरी सारी। हाँ। मैंने कहा यार ये क्या हो गया। हाँ। फिर वो अंसार वर्नी जी से बात की मैंने, तो उन्होंने बताया कि नहीं बहुत टेक्निकल इश्यूज हैं, नहीं छूट पाएंगे। मैंने कहा ठीक है। फिर वेट करना पड़ा उनको। फिर खबर आई कि फिर हमने क्लाइमेक्स लिखा उसका। ठीक है। फिर उसके बाद मतलब उसमें मैं गया था, सोनाक्षी जी वॉज टू प्ले दिस अपना कबीर कौर एट दैट टाइम, एंड बच्चन साहब वॉज टू प्ले अंसार वर्नी, और सुभाष घई जी वॉज टू प्रोड्यूस इट। बट वो, तो उसके बाद मैं जब गया तो कहते छूटने वाले हैं। मैं रास्ते में जा रहा था, गाड़ी उठाई, मैं शायद जयपुर ही पहुंचा था। तो वहाँ पर मुझे किसी ने बोला कि मेरे साहब टीवी लगाइए। मैंने टीवी लगाया तो देखा वहाँ पर न्यूज़ चल रही थी कि पाकिस्तान ने फिर धोखा दिया और सरबजीत पर अटैक हो गया। तो बस उसके बाद फिर मैं अमृतसर पहुंचा, उनके पास गया। फिर हम, एक प्रोसेस था जो आपने न्यूज़ में देखा ही है, हम गए फिर उसकी बॉडी आई। बट उस वक्त में 4 साल हो चुके थे, 8 9 10 11 12 तक हो गया था। एंड 4 साल में मैं बिल्कुल टूट गया। हम कहे यार ये ना, ऐसा लगा जैसे कि मैं उस किरदार को जी रहा हूँ, क्योंकि एक लेखक जो होता है किरदार को जीने लगता है अपने साथ, उसका पार्ट लगता है उसका। जी। सो उसके बाद वो कांची के कुछ प्रॉब्लम हो गया, फिर वो ये सब हो गया, तो भाई साहब ने मना कर दिया कि वो नहीं कर रहे पिक्चर। काफ़ी कुछ उथल पुथल हो गई। मैं स्क्रिप्ट लेके, पर मैंने, मेरी एक जिम्मेदारी थी टुवर्ड्स दैट लेडी जो 23 साल से अपने भाई को ढूंढ रही थी। जी। सो उसके प्रति मैंने क्या किया, मैंने ऐसा सेड कि बहन जी आप घबराइए मत, मेरा जो काम है चाहे कुछ भी हो जाए मैं इसको कंप्लीट करूंगा, चाहे कुछ कुर्बानी ना देनी पड़े, वॉट एवर इट इज। तो उसके बाद मैं स्क्रिप्ट लेके कहीं कहाँ नहीं घूमा। अल्टीमेटली फिर किसी तरह वाया वाया उमंग जी के पास पहुंचे। उनने बोला कि हमको दे दो स्क्रिप्ट। मैंने कहा सर आप स्क्रिप्ट लो, पिक्चर बनाओ, बिकॉज दैट बेनिफिट शुड गेट टू दैट लेडी। और उसके बाद फिर पिक्चर बनी। हाँ, हमने मैं, मेरे को पर्सनली बहुत पसंद आई थी वो मूवी। इट वाज वेरी सैड एंड वेरी, बहुत ही मतलब टचिंग थी वो, बहुत और इमोशनल मूवी। या। हाँ अविनिशा, इसको टू जस्ट टू ऐड टू दिस इसमें बता रहा हूँ, क्योंकि क्या है कि उसके अंदर हम वो, एक औरत की 23 साल की स्ट्रगल थी, 23 ईयर्स, तो वो जी। कहानी फिल्म के अंदर नहीं कह पाया था मैं। सो जी। अभी वेरी गुड स्टोरीज पर ही अगर आप चैनल पे मेरे जाएंगे, तो मैंने जी। ऑडियो सीरीज शुरू की है दलबीर कौर के नाम से। ओके। हाँ, तो 11 एपिसोड उसके मतलब पॉडकास्ट के लिए आ चुके हैं। तो आप अच्छा। एपिसोड्स देखेंगे तो उस पर श्योर तो श्योर श्योर। आपको मिलेंगे। जी जी, विल चेक इट आउट। या इज देयर, इज देयर। सर एक क्वेश्चन था, जैसे कि आपने जी। सरबजीत लिखी विच इज ट्रू स्टोरी बेस्ड एंड यू या आल्सो राइट फिक्शंस, एंड आपने कितने टीवी शोज लिखे हैं जो फिक्शनल हैं, तो या देयर इज अ क्वेश्चन, क्या हाउ इज इट डिफरेंट? दोनों की राइटिंग कैसे डिफरेंट है? आप कैसे, विच वन डू यू लाइक मोस्ट, और मे बी इजियर, व्हाटएवर, अगर दोनों का देखो, डिफरेंस देखना हो? देखो ईशा, सबसे पहले तो मैं ना ये बताता हूँ कि कुछ लोग ना, मेरे दोस्त है खास बहुत अच्छे अच्छे, वो कुछ कहते हैं, भाई आप मुझसे भी सवाल पूछते हैं कि आप कौन से राइटर हैं, आप जी। थ्रिलर लिखते हैं, आप इमोशन लिखते हैं, कि आप ये लिखते हैं। लेखक लेखक होता है, जी। ठीक है। मतलब अगर आप किसी पेंटर से बात करें या किसी आर्टिस्ट से बात करें, तो उसने अगर ड्राइंग बनानी है तो वो एक पत्थर की भी बनाएगा और एक जीवित इंसान की भी बनाएगा, वो पेंटर जी। है, ठीक है। तो राइटर राइटर होता है। देखिए मैंने हर तरह के शोज लिखे हैं, इमोशंस लिखे हैं जिसमें भाभी, संगम, मैंने ब्लैक ह्यूमर लिखा, कहता है दिल,
फिर कॉमेडी लिखा सोनी महिवाल, सोनू सूदी, और फिर क्या नाम है, फिल्म जो बिल्कुल जी डार्क या दर्द भरी कहानी थी, अभी ये सब लिखी। सो ऐसा कुछ नहीं है कि कौन सा अच्छा लगता है कौन सा बुरा लगता है, जो आपके दिल को छूती है ना बात, जो आप ठीक है। कहना चाहते हैं, एक चीज मान लीजिए कि जो आपको अच्छी लगती है ना, वो आप जैसे करोड़ों को अच्छी लगेगी। जी जरूरी नहीं कि वो सबको अच्छी लगे, लेकिन आप जैसे लोगों को जरूर अच्छी लगे। तो दिल की सुनिए, जी लेखक जी हमेशा दिल से लिखते हैं। जी। चाहे वो करोड़ आपके सामने हो ना हो, पर वो कहीं ना कहीं होंगे जिनको अच्छी लगेगी। बिल्कुल बिल्कुल जी। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो सर अगर मान लो किसी को कुछ लिखना है, ठीक है, और उसके पास आइडियाज हैं, बट वो अगर उसको कहानी के रूप में नहीं लिख पा रहा है, तो कुछ ऐसे आप टिप्स देंगे? कुछ आप मे बी खुद एक कुछ राइटिंग प्रोसेस फॉलो करते हैं जो हम्म। ऐसा कुछ कोई देखिए, प्रोसेस है जो या आप बता देंगे? देखिए देखिए, पहली बात तो मैं ये बता देता हूँ कि मैं बार बार सबसे कहता हूँ कि जो लेखन होता है वो दिल से जुड़ी हुई, आत्मा से जुड़ी बात है। मतलब एक बड़ा, कुछ लोग इस बात को हंसते भी है, मैं हमेशा जब भी कहता हूँ, ये कहता हूँ मैं नहीं लिखता, मैं हमेशा लिखने से पहले सरस्वती माँ को बुलाता हूँ, माँ आ जा। जी। ठीक है, ये मेरे बिलीफ है, ये मेरा बिलीफ, ठीक है। ओके मैं सर। बुलाता हूँ, वो आती है, जी क्योंकि कभी कभी तो मैं खुद हैरान होता हूँ कि मैंने जब लिखा होता, मैं अपना लिखा हुआ देखता हूँ, तो मैं खुद हैरान होता, अरे मैंने लिखा है। तो यानी कि कोई ना कोई एक शक्ति है जो आके लिखती है। बाकी रही टिप्स की बात, देखिए, जो लेखन होता है उसके अंदर आपको हमेशा अपना दिमाग, आंख, कान सब खुला रखना है। आपके साथ, आप बिलीव कीजिएगा, आपकी जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, जो मैं पहले भी बोल रहा था, वो भी रिएक्ट करती हैं। ठीक है, चाहे आपका मोबाइल है, चाहे जी आपका लैपटॉप है, जी। चाहे आप उसके बाद कोई पेट पालती हैं, ठीक है, वो भी रिएक्ट करती है। तो आप जितना जिसको प्यार देंगी वो उतना आपको जवाब देता है। जी ठीक है। अब सबसे पहली जरूरत क्या होती है कि हमेशा कैरेक्टर्स ऑब्जर्व कीजिए, ठीक है। कैरेक्टर्स ऑब्जर्व कीजिए, क्योंकि आपके मन में बात है, आप लेखक हैं, आप लिखना चाहते हैं, आपके मन में बात है, पर उसको स्वरूप देने के लिए आपको किरदार चाहिए। ठीक है। अब या तो किरदार किस कहते हैं, हम तो इमेजिनरी किरदार बनाते हैं। इमेजिनेशन कुछ नहीं है, कोई एलियन नहीं है जो इमेजिनेशन आप कर रहे हैं। आपने कहीं ना कहीं आपके बैक ऑफ द माइंड अपने बचपन से लेकर या अपने रोजमर्रा की जिंदगी में किरदार देखे होते हैं, वो कहीं जी घूम फिर के उस किरदार में फिट हो जाते हैं जो आप। तो द उल्टा प्रोसेस इज व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू क्रिएट अ कैरेक्टर। ये कैरेक्टर कैसा होगा, और ये कैरेक्टर यार वो विक्रम की तरह होगा। ये कैरेक्टर कैसा होगा, अरे ये कैरेक्टर शालिनी जैसा होगा। तो आपके आसपास जो किरदार हैं उनको डालिए, उनके ट्रेट्स लीजिए। ठीक है। वो मिक्स मैच भी कर सकते हैं, तीन लड़कियों का, तीन लड़कों का कैरेक्टर मिला के आप एक कैरेक्टर बना सकते हैं, वो बनाइए। उस कैरेक्टर को आप कॉपी पे उतारिए, उसको उसके बाद जिंदगी दीजिए। बहुत लोग नहीं करते हैं। ठीक है। आपको, एक माँ जब बच्चे को पैदा करती है, ठीक। तो उसके अंदर एक, मतलब जान तो आ जाती है, भगवान देता, वो रो पड़ता है, जी पर जिंदगी, वो जान है, जिंदगी माँ देती है अपने स्तन से दूध पिला के। राइट। जी। तो आपको हर किरदार को एक माँ बन के दूध पिलाना है, जी तब जाके वो किरदार जीवित होता है, आपके साथ चलता है, आपका कहना मानता है। जिस तरह से माँ बच्चे की परवरिश करती है, बच्चा बड़ा होता जाता है। जी राइट। उसी जी तरह किरदार भी धीरे 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 आपके सिखाए पर, आपकी सोच के साथ बड़ा होना शुरू होता है। जी। ये आपने दिस इज, काफी बहुत बड़ी बात और बहुत बड़ी बात कही है आपने, काफी डीप बात कही है। दैट्स वेरी ट्रू इफ आई रिलेट टू इट। तो सर जैसे आप कैरेक्टर के बारे में बोल रहे हो, इफ व्हेन यू स्टार्ट राइटिंग, तो आप प्लॉट को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हो या फिर कैरेक्टर से स्टार्ट करते हो और फिर आप प्लॉट की तरफ जाते हो? व्हाट डू देखो यू प्रेफर? या देखो, दो तीन तरह की राइटिंग होती है। कि एक तो होता है कि जब आप टेलीविजन के लिए काम करते हैं, तो आपके पास ना एक रिक्वायरमेंट आती है जी कि कि हाँ जी, हमको ना ऐसी लड़की की कहानी चाहिए, ऐसे ठीक है। लड़के की कहानी चाहिए। ठीक है, हमको कहानी आती है कि
हमको अ, उसके दायरे के अंदर बंद के बैठ के हमको जो है कहानियां कहनी होती है, जी ठीक है। तो हमारे हाथ बंद है। अब हर लेखक एक बच्चे की तरह होता है, वो बहुत इनोसेंट होता है। जब बच्चा स्कूल में जाता है या बच्चा किसी इंस्टीट्यूशन में जाता है तो उसको वैसा बनाया जाता है, वैसा सिखाया जाता है। तो ये टेलीविजन भी एक तरह से वैसा ही है कि अच्छा आपको बताया जाता है कि इस तरह से बनाइए, इस तरह से बनाइए, इस तरह से बनाइए, ऐसे कीजिए। बट ठीक जब आप अपनी कन्विक्शन से अपने दिल की बात सुनते करते हैं तो हम्म, कहानी का स्वरूप अलग होता है। और जैसे मैंने कहा कि जब मैंने भाभी शुरू किया था जी तो भाभी के किरदार मैंने क्रिएट किए, किरदारों को जन्म दिया, किरदारों में जान फूकी। जी जान फूकी 15-20 एपिसोड के बाद उनकी परवरिश की, वो बड़े हो गए, फिर वो खुद चलने लगे, वो किरदार मेरे से बातें करते। तो जब भी कितने भी जो बच्चे सुन रहे हैं जो राइटर बनना चाहते हैं, जो ये है जी कि किरदारों को जब तक आप जीवित नहीं करोगे, वो आपसे बात नहीं करेंगे, आप उनसे बात नहीं करोगे, वो अपनी कहानी नहीं कह पाएंगे। सो ऑटोमेटिकली कहानी बनती चली जाती है। और मैं सच बताऊं, मुझे नहीं पता मैं लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में कैसे पहुंच गया। मैं एक बंद कमरे में बैठ के लिखता रहता था। जी उस समय तो कंप्यूटर भी नहीं होते थे। मैं इंटरेस्टिंग बताता हूँ आपको। आई स्टार्टेड भाप इन 2002। तो 2002 में मैंने तो लिखना 2000 से शुरू, 2 साल से लिख ही रहा था, मतलब मैं लिखता रहता था कागजों पर, तो कंप्यूटर के जी पेपर पर। तो वो लिखते लिखते मुझे, मैंने एक फ्लैट लिया, उसके अंदर बैठा रहता था। पहले अपने एक 1 बेडरूम हॉल था, अंदर के कमरे में बंद रहता था, लिखता रहता था। तो मुझे उस बात का मतलब समझ आया जो कहते थे ना, अ, साधु तप कैसे करते हैं, कहते हैं गुफा में जाकर अच्छा तप करते हैं। जी तो वो कथन ये था कि आप अपने कमरे में, अपने घर में अपने आप को साधु बना, इसमें बैठिए, इसके अंदर बैठिए और कमरे के अंदर बैठिए, उसे गुफा समझिए, तो आप बड़े बड़े ग्रंथ लिख सकते हैं। बस उसी के साथ बैठ के फिर जब वो कहानी बन जाती थी तो रिवर्स हम्म, होता था। फिर वो लोग आ कहते थे कि मिस्टर बेरी, दिस इज द प्लॉट, दीज आर द कैरेक्टर्स, दिस इज दिस। मैं कहा अच्छा इसको प्लॉट कहते हैं, अच्छा अच्छा इसको कैरेक्टर्स कहते हैं, अच्छा 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 इसकी कहानी कहते हैं। सो इट वेंट दैट वे। ओके और ये प्लॉट की बातें मैं बड़ा इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। एक सीरीज मेरी बड़ी हिट हुई थी, कहता है दिल, स्टार पर से। ठीक है तो वो एक बन रही थी, मतलब उसके कुछ 20 एपिसोड बन चुके थे। तो मुझे जरीना मेहता का फोन आया कि राजेश तुम जाके उसको टेक ओवर करो, कि उसको लिखना है। जी तो इधर रशियन विला एक स्टूडियो है मुंबई में, वहाँ पर शूटिंग चल रही थी। मैं चला गया, मैं किसी को जानता नहीं था। तो राकेश सारंग डायरेक्टर, तो उधर शूटिंग चल रही थी, क्या जी एक्टर्स काम कर रहे थे। तो उसमें अमर वर्मा, गौतम गिल वगैरह थे। मैं बाहर बैठ गया, मैं किसी को जानता नहीं। हम्म, तो थोड़ी देर बाद होता ना कि यार आपको कोई जानता नहीं है, कोई पहचानता नहीं है, यार ये क्या करने आए हो। मैंने कहा सर निकल लो यहाँ से। तो बाहर मैंने देखा 3 किरदार। उसमें मनोज जोशी जी थे, उषा कपूर और अतुल जी श्रीवास्तव, ये तीनों बैठे हुए सामने। और मैं सोचे जा रहा हूँ क्या कहानी बनाऊंगा यार। ये तो कहानी कुछ एक पुलिस ऑफिसर की है जिसके जिंदगी में रोज एक क्रिमिनल आता है और फिर उनकी लाइफ कैसे हिल जाती है, फिर वो क्रिमिनल चला जाता है। तो ये एक 3 कैरेक्टर्स आए थे इस एपिसोड के अंदर। तो मैं देखे जा रहा हूँ, देखे जा रहा हूँ, तो उषा कपूर कुर्सी पे बैठी हुई थी। तो बैठी हुई तो उनकी साड़ी लटक रही थी, वो फोन पे किसी से बात कर रही। तो मनोज जोशी बहुत शरारती थे। मनोज जोशी प्रियदर्शन की बहुत फिल्मों में आते हैं, आप जानते हैं। तो उन्होंने आके पीछे उनके मेंढक बांध दिए। मैं ठीक देख है रहा था। तो वो अतुल श्रीवास्तव चरणदास बने थे, ये मेयर साहब थे और वो मिसेस मेयर बनी कैरेक्टर्स। तो मेंढक बांध दिया। मैंने कहा यार ये कर क्या रहे हैं, इंटरेस्टिंग है। और मैं मनोज जोशी ने अतुल श्रीवास्तव को ऐसे बुलाया। अतुल श्रीवास्तव कहता मुझे क्यों फंसा रहे थे, बैठ जा कुछ नहीं होगा। और मनोज जोशी निकल गए। जी अब मैं अगले मोमेंट का इंतजार करने लगा। सडनली वो उषा जी खड़ी हुई तो उनको मेंढक दिखा नीचे, एंड शी स्टार्टेड स्क्रीमिंग। तो करके उसने चप्पल निकाल के वो अतुल श्रीवास्तव को पिटाई, पीछे भागी चरणदास की। वो कहता मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया, मैंने किया, इन्होंने किया, इन्होंने किया, इन्होंने किया।
मैं वहां से बाहर निकला, आई कॉल्ड अप जरीना, आई थिंक आई हैव गॉट द स्टोरी. Okay. The story of the कहता दिल is not about the police IPS officer and his family. It's the story of is a story of Charan Das, mayor, and his wife. And यहाँ पर कहता दिल एक डिफरेंट स्वरूप में नजर आया जो इनकी कहानी बनी. सो इस तरह से हमेशा ध्यान रखिए जब भी आप लिखते हैं, जी. जब भी आप लिखते हैं तो कभी कभी किरदार जो है, मैं इसीलिए आपसे बोलता हूं कि आप अगर किरदारों से बातें करते हैं तो किरदार अपनी कहानी कहना शुरू कर देते हैं, जिसको आपको बोलते हैं ना, आप अब टेलीविजन लिखते हैं, आप टेलीविजन सीरियल के अंदर कहते हैं कि दिस कैरेक्टर इज वर्किंग, या दिस एक्टर इज वर्किंग, सो इसके बारे में लिखो. यानी कि वो किरदार अपनी कहानी कहना चाहता है. लिसन टू दैट कैरेक्टर. और उस कैरेक्टर को, मैं टेलीविजन की बात कर रहा हूं, नॉट वॉट, उस कैरेक्टर को आप फिर आप बढ़ाना शुरू करते हैं, उसकी एक्टिविटीज बढ़ाना शुरू करते हैं, उसके आसपास की, एंड दैट कैरेक्टर बड़ा होता चला जाता है एंड वो अपनी कहानी बड़ी करती जाती है. प्लॉट बन जाता है. प्लॉट बन जाता है. प्लॉट बन जाता है. ठीक. तो सर जैसे आपने बोला कि फिर आपको आके लोग बोलते हैं कि ये कैरेक्टर है, ये है, ठीक है, तो आपके पास डेडलाइंस होती है. तो आपके साथ ऐसा होता होगा कि लिखा नहीं जा रहा, या आइडियाज नहीं आ रहे हैं, या फिर क्लाइमैक्स सही नहीं बैठ रहा है, या ऐसा जो आपके पास ब्लॉक आ जाता है, तो आप क्या करते हो कि डेडलाइन पे हो, ब्लॉक है, कुछ लिख नहीं पा रहे हो, तो आप क्या करते हो ऐसे में? देखो निशा, ब्लॉक कुछ नहीं होता. जब आप वीडियो गेम खेलते हो ना, है ना, ये सब लोग खेलते हैं, जो इधर सकता है सब लोग वीडियो गेम खेलते हैं, ठीक है जी. तो वीडियो गेम में क्या करते हैं, वो कैरेक्टर जा रहा है, ऐसे जा रहा कई बार वॉल आ जाती है, जी. तो क्या करता है, कैरेक्टर थोड़ी रुकता है, वो पॉप 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 करता रहता है ना, वो दूसरी और रास्ता ढूंढता है, जी. फिर दूसरी रास्ता ढूंढता है. तो कोई कैरेक्टर को सुला थोड़ी देते, नहीं तो कहते हैं गोली चलती उधर से इधर से, वीडियो गेम में ये होता है ना, तो कैरेक्टर मर जाता है. आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते ब्लॉक, ठीक है, आप ब्लॉक अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है. जी. अगर आपका दिमाग इस किरदार के साथ नहीं चल रहा, कोई कहानी नहीं बन रही, तो गो टू अनदर कैरेक्टर, लिव विद हिम. वो तो एक्टिव होगा. आप इस लाइक अ फैमिली, आपके घर में फैमिली में है 6 लोग हैं, 5 लोग हैं, आप आज एक का मूड खराब है, वो एक का मूड खराब है तो दूसरा अब दूसरे के पास चले जाइए, वो दूसरे के पास चले जाइए, ठीक है. दूसरा मूड खराब है तो तीसरे के पास चले जाइए. उसी तरह से आप उसके पास चले जाते हैं, ठीक है. और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि आपने एक बार लिख दिया, लिखने के बाद जो है, जो एक्टर्स हैं वो जब उनको कैरेक्टर्स में आना बहुत जरूरी होता है. और मैं बड़ा लकी रहा हूँ इस मामले में कि मेरे जितने भी मैंने शोज किए हैं, आई गॉट फैंटास्टिक एक्टर्स. मतलब मैं ये एक राइटर के लिए एक बहुत लक की बात होती है कि आपको एक्टर अच्छे मिलना. आप लिख तो देते हो, आपने सोच तो लिया, पर उसको परफॉर्म कौन करेगा? तो परफॉर्म करने के लिए आपके पास एक अच्छे एक्टर का होना बहुत जरूरी है. सो विच आई एम वेरी लकी, आई फाउंड वेरी गुड एक्टर्स. ओके. तो सर इसी बात पे एक्चुअली हमारे ऑडियंस में से एक क्वेश्चन है शर्मिला सिंगला का कि हाउ डू यू रिएक्ट इफ द कैरेक्टर डेवलप्ड बाय यू एंड द एक्टर आर डिफरेंट, कि व्हाट वुड यू डू देन, कि आपने ये कैरेक्टर लिखा था कुछ तरीके से और एक्टर जो है वो काफी डिफरेंटली उसको वो कर रहा है, तो हाउ डू यू मतलब मेक पीस विद दैट, कैसे आप उसको मैनेज करते हो? Yeah, okay. That's not a difficult thing because I am being a very because I always believe कि कोई भी प्रोडक्ट बनता है, it's a team work. So I believe very strongly believer of that कि मतलब मैंने एक बार लिख दिया, इवन मतलब आप बिलीव करेंगे कि मैं अपनी स्क्रिप्ट जो है इवन ड्रेसमैन को पढ़ाता हूँ, इवन लाइटमैन को भी सुनाता हूँ. मैं जाके मैं बड़ा एंथुसियास्टिक होकर भैया ये सुनो सुनो सुनो, इसमें कुछ इनपुट है, कुछ इनपुट है, कुछ इनपुट है. एंड बिकॉज थिंग इज कि अल्टीमेटली द एक्टर हैज टू परफॉर्म. वंस यू हैव रिटन इट, आपने एक बेस लाइन दे दी है, ठीक है, आपने पिज्जा का एक बेस बना दिया, उस पर जो पनीर और ये सब कुछ डालना है, ये तो फिर वो दूसरे ने डालना है, वो एक्टर है हमारा. तो मुझे इस बारे में मैं बड़ा ओपन रहता हूँ. और मेरे बहुत आई एम वेरी लकी अबाउट दिस एंड आई विल गिव दिस क्रेडिट टू मिस्टर राजेश पुरी. आई विल से कि व्हेन आई वाज वेरी यंग आई वाज राइटिंग अ पंजाबी शो, मैं डायरेक्ट भी करता था उसे, आज नहीं हो लड़ना. एंड he was very experienced, I was very new and used to come and say कि राजेश इसको ऐसे करें, इसको ऐसे करें, इसको ऐसे करें. मैं कहा सर जी ऐसे करो. और
इंटरेस्टिंग बात, एक ये चीज में इस पे आ रहा था बाद में, क्या होता है कि एक बार आपने किरदार बना दिया, कैरेक्टर बन गया, ठीक है? ये तो जी आपका हो गया बेस। नाउ कम्स द जी डायरेक्टर एंड द एक्टर्स। जब डायरेक्टर और एक्टर आता है वो अपना एक विजन लेकर आता है। जी आप क्या करते हो, आप उस एक्टर को, आपने एक बच्चा बड़ा किया, उसको आपने निकर पहनाई और टी शर्ट पहना दी। अब स्कूल में कहते नहीं जी उसको स्कूल ड्रेस बना के भेजो, तो हम जी क्या करते हैं, हम बाजार से स्कूल ड्रेस खरीद के उसको टाई लगा के भेजते हैं, बच्चा आपका है। जी तो वो जो स्कूल ड्रेस और टाई है वो एक्टर और डायरेक्टर देता है कि सर ये कैरेक्टर को ये पहनाओ, तो मैं फिर उसको टाई बना के देता हूँ और जो कैरेक्टर मैंने बनाया होता है उसकी स्ट्रेंथ डबल हो जाती है। ठीक है। दिस इज द वे आई बीन वर्किंग एंड आई एम वेरी लकी बेस्ड ऑन द दैट आई। रिक्वायरमेंट्स थोड़े बहुत इधर उधर चेंजेस करके यू मैनेज की कुछ डायरेक्टर की मैनेज नोट से मैनेज इंडियन मैनेज राइटर्स। नहीं, मैनेज इज अ रॉन्ग वर्ड, यू हैव टू गेट कन्विंस और कन्विंस। जी जी। तो सर यू आर राइटिंग लाइक फॉर सो लॉन्ग, तो आपने स्टोरी टेलिंग के को कैसे चेंज होते हुए देखा है कि हाउ फ्रॉम योर टाइम टू अब तक कैसे कैसे स्टोरी टेलिंग जो है वो चेंज हुई है, या अभी भी आफ्टर लॉकडाउन भी, कि क्या चेंजेस आपको लगता है कि देयर विल बी इन द स्टोरी टेलिंग डेज। जी देखो, एक चीज था जो जो अबाउट टॉक अबाउट माय जनरेशन, तो हमने बहुत सारी, ये एक ही जनरेशन जिसने बहुत सारी चेंजेस देखी हैं। If I remember, I have been hearing the stories of partition from my grandfathers and grandmothers and all. उसके बाद फिर हमने बांग्लादेश की लड़ाई देखी, मतलब उस, हम बच्चे छोटे छोटे बच्चे थे, वो देखा। हमने काफी रेवोल्यूशन देखी, हमने टीवी, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी देखा। जब कहीं आता था टीवी तो किसी घर में उसका एंटीना कैसे होता था, वो एंटीना कैसे घुमा के एक दूरदर्शन आता था, उसमें एक समाचार आता था, तो पहली सीरियल बुनियाद आई, फिर हम लोग आई। तो ये हमने उस जमाने से वो चीजें देखी हैं, फिर वो 84 के राइट्स है ना, और मतलब बहुत कुछ हमने देखा है। वहां से लेकर आज मैं आपके सामने लाइव इंस्टाग्राम पे बात कर रहा हूँ। सो दिस इज द जर्नी, हमने किया। जब मैंने भाभी लिखा था तब मोबाइल नहीं होता था, पेजर होता था, कंप्यूटर नहीं होते थे, हाथ से लिखता था। वहां से लेने के बाद आज मैं अपनी खुद की फिल्म, शॉर्ट फिल्म या कुछ भी इंटरव्यू खुद मोबाइल पे एडिट करता हूँ। सो दैट इज द जर्नी आई हैव गॉन थ्रू एंड आई एम वेरी लकी दैट वे। और बाकी, और उसी प्रकार से हमारी सोच में जब हम कहानियां कहते हैं कि मतलब पहले जो कहानियां बनती थी, कहानियां कुछ और तरह की होती थी, हमेशा याद रखिए जब आपका जो देश के अंदर जो आपके आसपास का एटमोसफियर, माहौल चल रहा होता है, आपको उस तरह से कहानियां चुननी होती जी है कि जब माहौल बहुत अच्छा है, कोई तकलीफ नहीं है, कोई दुख दर्द नहीं है, आपने देखा होगा क्राइम शो, मतलब इस तरह के मतलब शोज, मतलब सास ने उसकी बहू को आग लगा दी, साड़ी को आग लगा दी, जी नो, आप आपका दिमाग ना क्राइम देखना चाहता है, और चाहे वो डेली सोप का क्यों ना। जी और जब हालात खराब होते हैं देश में, जो आजकल, नाउ वी वांट टू सी पॉजिटिविटी, पॉजिटिव। हम मुस्कुराना चाहते हैं, हम उम्मीद देखना चाहते हैं। सो जी दैट वे यू हैव टू चेंज, ब्रिंग दैट चेंज इन योर राइटिंग एंड स्टोरी टेलिंग। इन फैक्ट कि आप आज की तारीख में क्या पॉजिटिविटी दे सकते हैं, कि आप वो न्यूज चैनल वाले तो दे रहे हैं आपको जो नेगेटिविटी दे रहे हैं, जी जो जिसको अब वो रियलिज्म के नाम पे देते हैं कि जो सच्चाई है वो उसको बता के दे रहे हैं, उसके पीछे भाग नहीं सकते। लेकिन उस माहौल में, उस समय में आप कैसे किसी को हंसा सकते हैं, कैसे चेहरे पे उम्मीद जगा सकते हैं कि नहीं, जिंदगी इसके अलावा भी तो है। हम कोरोना के साथ अटक के अपनी जिंदगी को रोक नहीं सकते, जी। इससे लड़ना सीखना, लड़ेंगे, बट दूसरी तरह से जिंदगी को जीनी है। सर आप अभी कुछ कहानियां अपनी कारवा स्टोरीज में भी लिख रहे हैं ड्यूरिंग या लॉकडाउन, तो ये आइडिया मतलब ऐसे ही आया कि ठीक है लॉकडाउन चल रहा है सो लेट्स डू समथिंग लाइक या दैट, तो मैं जैसे सबके साथ एक फेज आया, मेरे साथ भी एक फेज आया था। मैंने, मतलब एक डिप्रेशन आ जाती है ना कि अब क्या होगा, हम्म, अब क्या होगा, तो लॉकडाउन हो गया तो क्या होगा, मतलब सबके ख्याल आते हैं, तो काम जी नहीं है, नौकरी नहीं है, बीमारी हो जाएगी, मर जाएंगे क्या। मतलब मेरे दोस्तों को फोन आते थे, यार पता नहीं क्या होगा, ये दुनिया एंड तो नहीं हो जाएगी। मैंने कहा यार भाई, जिसने पैदा किया है उसने भी स्क्रिप्ट लिखी है, वो बहुत बड़ा स्क्रिप्ट राइटर ऊपर बैठा है, क्यों टेंशन अच्छा। ले रहे हो, है ना, टेंशन मत लो, इट्स ओके। सो मैं भी डिप्रेशन में आ गया, बाल वाल निकाल दिए, सब कुछ हो, समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। सो आई वाज टॉकिंग टू माय फ्रेंड्स एंड हमारी एक बड़ी अच्छी दोस्त हैं शैलजा केजरीवाल जी, तो कहते क्या बात है उदास क्यों है?
क्या ये समझ नहीं आ रहा मुझे। अच्छा नीचे जाते थे, वो किसी को पैकेज दे दिए, वॉचमैन को, इनको कोई साथ जा रहा था उनके साथ, ये करने लगे। पर कहीं सुकून नहीं मिल रहा था कि दिस इज नॉट व्हाट यू कैन गिव टू द सोसाइटी, इट बी समथिंग बिगर। तो फिर उन्होंने मुझे बोला कि आप सोसाइटी को वो दीजिए जो आपने सोसाइटी से लिया है। बड़ी मैं सोच में पड़ गया, तो मैंने सोसाइटी से क्या लिया? मैंने सोसाइटी से कहानियां ली, तो मैं कहानियां देना चाहता हूँ। पर अब एक राइटर का क्या है कि जब तक एक्टर एक्ट नहीं करेगा, डायरेक्टर डायरेक्ट नहीं करेगा, शूटिंग नहीं होगी, तो आप कर नहीं सकते ना। जी जी। सो मैंने कहानियां ऐसे मोबाइल पे नरेट करनी शुरू की। ठीक है। मैं सच्ची बता रहा हूँ मनीषा, मेरे को मोबाइल के एप्स, आई एम नॉट दैट टेलीफोन अपना मोबाइल से अभी, मेरे को समझ नहीं आती थी कि ये कैसे करना जी है। जी। अरे यार इसको बता दो, बच्चों को बोलो यार कैसे रिकॉर्ड करना है, यार इसको कैसे एडिट करना है। पर मैंने रिकॉर्ड कर ली, ये पहली कहानी ठीक है। डेढ़ महीने पहले हुआ। पहले कहानी रिकॉर्ड कर ली और मैंने ऐसे सबको भेजी। उसके बाद सारेगामा से मिस्टर विक्रम मेहरा जो हेड है वहाँ के, और बड़े अच्छे दोस्त हैं हमारे, बिकॉज आई वॉज कंसल्टेंट फॉर सारेगामा ऑल्सो फॉर 3 years, कंटेंट हेड था उनका मैं। सो ही हर्ड द स्टोरी एंड ही कॉल्ड मी कि कितनी कहानी है? मैंने कहा सर 932। 932। मैंने कहा हाँ, मतलब 932 कहानियां तो है, मैंने 932 कहानियां अभी लिखी हैं। जी। तो पर मैं इसको अपने तरीके से कहना चाहता हूँ। And I'm very thankful to him. He called me and I narrated the stories in the studio. And from there I learned very honestly and tell you how to record your voice. वैसे तो हम कह देते हैं ना, बात करते करते मोबाइल में बात करते दूसरे को बहुत बोल सकते हैं, लेकिन फिर जी। लर्न कितना डिस्टेंस रखना है माइक से, कैसे ऊपर रखना, ब्लो नहीं आना चाहिए, रिकॉर्ड करना सीखा, अपनी आवाज़ सुन के अच्छा लगा। फिर मैंने अपने घर पे सेटअप लगाया, कोरोना हो गया, मैंने कहा आई विल रिकॉर्ड माई स्टोरीज। आई स्टार्टेड रिकॉर्डिंग वेरी गुड स्टोरीज चैनल पर। मेरी बेटी है, उसने बोला कि वेरी गुड स्टोरीज मैंने खोल दी। खोलने के बाद फिर आई लर्न एवरीथिंग, आई डाउनलोडेड ऑल द एप्स जो रिक्वायर्ड एप्स थे। उन ऐप से मैंने खुद एडिट करना सीखा, खुद ही साउंड डाला। एंड देयर आर माय कोलीग्स मेरे साथ जुड़े हुए हैं, शिखर एंड राहुल करके हैं, एंड अनिका, ये जी। हैं हमारे साथ जुड़े हैं। उन्होंने हेल्प करनी शुरू की, फिर उनको एक्साइटमेंट हुआ, पहले वो भी बिलीव नहीं कर रहे थे, बट नाउ दे हैव स्टार्टेड बिलीविंग इन इट। एंड दैट्स इट। टुडे आई हैव गॉट सम एक ऐप है जिसपे नियरली 3000 लिसनर्स हैं उसके ऊपर, एंड इट्स ग्रोइंग। एंड नाउ I will just show you this. This is a very interesting thing. And this is the Saregama Karwa 2.0. You know, इसके यस। ऊपर अभी वेरी गुड स्टोरीज आ रही है, एंड वेरी हैप्पी के आई एम ऑन 315 चैनल नंबर 315, एंड बच्चन साहब 320 पे हैं। सो दिस इज अगेन माय Congratulations. अचीवमेंट। That's very good for you. या या सर ये क्वेश्चन है फ्रॉम द ऑडियंस आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में, जॉली LLB 3 के बारे में। वी हैव हर्ड दैट यू हैव। Yeah, it's a very interesting kissa, because as I told you, I keep on innovating things. Before Jolly LLB, I tell you, it's about Tenzing Norgay. Tenzing Norgay was the first person to climb Everest. So what happened after Sarabjit? I was being called by many people कि ये लिख दो, वो लिख दो, वो लिख दो, वो लिख दो, वो लिख दो, लेकिन कुछ जिस तरह से सरबजीत लिखी, दिल से आवाज, इससे दिल से आवाज नहीं आती। Then suddenly I was just sitting with some children, बैठा हुआ था, I was sitting in a restaurant, तो वो बात कर रहे थे, अरे पता है मैं ना वो करके आई हूँ, नासिक गए थे हम, ट्रैकिंग करके आया, यू नो इट वाज 200 feet हाई, अरे ऐसा हो गया, वैसा हो गया, सो that was the highest point, and that was the highest point. So I turned back, no, which is the highest point of this country? Only 1% would answer the Everest. अच्छा, तो उसकी क्या पीक की हाइट क्या है, नहीं पता था उसको। मैंने कहा नहीं, इट्स नॉट टू एम्बैरेस यू गाइस, इट्स जस्ट आई केम बैक विद थॉट कि हमारे देश में जो एवरेस्ट की जो हाइट है 29 पीक की, जो सबसे ऊपर जो हाईएस्ट पीक है,
और सर जिसपे आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है, इफ यू कैन जस्ट। हेलो, कैन यू हियर मी नाउ? यस यस यस, सो परफेक्ट। मैंने कहा उसके बारे में बच्चों को पता नहीं है, तो गलती कहीं हमारी है। जनरल नॉलेज के क्वेश्चन बुक में क्वेश्चन होता था कि वी द फर्स्ट मैन टू क्लाइम एवरेस्ट वाज तेनजिंग नॉर्गे विद एडमंड हिलरी। सो आई थॉट ऑफ creating a story on that, and we created me and my daughter Anika, we created an audio visual, हमने कहानी बनाई उसकी। हम गए, फिर आई वेंट टू नेपाल, उनकी कहानी बनाई। एंड उसके बाद फिर हम उनसे बात, बेटे से मिले, उनसे बातचीत करके अगेन इट टुक मी 2 years to create the story about Tenzing Norgay, the emotional side of the story, which was ready. But unfortunately what happened कि ये भी एक मतलब ये जितने भी राइटर्स बच्चे जो बनना चाहते हैं, मैं बताना चाहता हूँ आपको कि हमेशा कोई भी आप कहानी जब बनाते हैं उसमें रिसर्च वर्क बहुत ज़रूरी होता है, टू क्रिएट द कैरेक्टर्स और जो क्रिएट अदर थिंग्स। सो मैंने उसकी कैरेक्टर्स की जब कहानी बनाई तो उसके बाद समथिंग वेंट रॉन्ग बिकॉज वन ऑफ हिज सन हु वाज देयर इन यूएसए, उन्होंने कुछ राइट्स वाइट्स किसी और को दे दिए, समथिंग हो गया, तो मैंने उसको पुल बैक कर लिया। सडनली आई गेट अ कॉल फ्रॉम वन ऑफ माय फ्रेंड, सर हाय आई एम मंजीव। जस्ट टेल मी, माय फादर वांट्स टू मीट यू। मैं कहा हु इज योर फादर? दिस इज ही इज द फर्स्ट इंडियन सिविलियन टू क्लाइंब एवरेस्ट। मैंने कहा व्हाट्स हिज नेम? दिस इज चंद्र प्रकाश वोरा। चंडीगढ़ गया फ्लाई करके, उनसे मिला, एंड इंटरेस्टिंगली ही इज द फर्स्ट सिविलियन इंडियन, इज एन इंडियन टू क्लाइम एवरेस्ट, और उनके बारे में कहीं भी कुछ जिक्र नहीं था ज्यादा। नाउ आई स्टार्टेड राइटिंग, ही गेव मी ऑल द राइट्स, आई स्टार्टेड डूइंग रिसर्च वर्क एंड आई स्टार्टेड राइटिंग स्टोरी एंड नॉवल। माय स्क्रिप्ट इज रेडी बाय नाउ। सो उसके साथ साथ आई वाज डूइंग एक कहानी में लिख रहा था, और it was based on Jallianwala Bagh 1939 massacre in Amritsar. जी। So one of my friends Sri Ram and मैं ऐसे स्क्रिप्ट नरेट की, मैंने कहा जलियांवाला बाग पे ऐसे ऐसे है, and he said कि सुभाष कपूर is looking for similar kind of script. So I went to Subhash Kapoor, the director of Jolly LLB 1 and 2. Okay. तो वो कहानी मैंने उनको जब सुनाई, he said Rajesh this is my Jolly LLB 3. So when Fox से बात हुई, कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया, एंड जॉली LLB 3 is on now, and it's based on जलियांवाला बाग मैसेकर। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सर आपने नॉवेल भी आप एक लिख रहे हैं? नहीं, मेरी नॉवल ऑलरेडी किंडल पे अवेलेबल है, अमेजोन पे अवेलेबल है, एंड इट्स तेरे बगैर, इट्स अ रोमांटिक नॉवल, and it's basically the story is based in as I told you is based in around 2000 or 2001, मतलब आज से 15 साल पुरानी कहानी है, लेकिन आप उसको जब पढ़ेंगे तो इमोशंस, वो फीलिंग्स, वो प्यार, वो सेम है, कुछ नहीं बदला, सिर्फ मोबाइल आया हमारी जिंदगी में, बाकी रिश्ते सेम है, कुछ चेंज नहीं हुआ। तो वो अवेलेबल है, तेरे बगैर उसका नाम है। हम कुछ क्वेश्चंस ऑडियंस से ले लेते हैं। ऑडियंस प्लीज शूट योर क्वेश्चंस। ओके, देयर इज वन क्वेश्चन। मेरे यहाँ ये स्क्रॉल होना बंद हो गया है, आप एक बार स्क्रॉल करके देखिए, यू खुद से हाथ से। हाँ, अच्छा अच्छा, राइट, हाँ, यू कैन पिक एनी क्वेश्चन जो आपको लग रहा है कि इट्स There's this one. I can't pick because it's too small. Because if someone if you can just ask a question, I think I'll recite for you. So there's one question. How does a writer tackle the situation when his best part gets edited? ओह, ये तो आप ऐसा हो जाता है कि आपकी बहुत सी शर्ट थी, आज आपको मीटिंग के लिए जाना है, और आप देखते हो कि वाइफ प्रेस कर रही थी, वो चला दी उसने, but you got no option. You have to just change the shirt and go. That's all. Yeah, just change the shirt and go. Yeah. Correct.
हाँ, यहाँ पे एक और रिक्वेस्ट है टू रिसाइट अ फ्यू लाइंस फ्रॉम तेरे बगैर पोएम. ओके, सो एक मिनट. ओके, तेरे बगैर की कुछ लाइंस है मुझे. कैसे काटा है वक्त तेरे बगैर, कैसे काटा है वक्त तेरे बगैर, इन हवाओं से पूछ कर देख, जो छू कर आती थी तेरे बदन को और आकर देती थी मेरे दिल को सेक. जब भी उठे ये हाथ दुआओं के लिए, अक्स तेरे ही नजर आते थे. तेरी शर्म, तेरी अदाओं के अनगिनत रंग हौले से आकर मेरे कानों में कुछ कह जाते थे. दिल तो मेरा तेरे पास ही है, दिल तो मेरा तेरे पास ही है, नहीं मेरा यकीन, उसी से पूछ कर देख के कैसे काटा है वक्त तेरे बगैर. Great, sir. On this note, we are towards the end of our session. तो आप ऑडियंसेस के लिए कुछ भी आप कुछ भी राय देना चाहते हैं फॉर द ऑडियंसेस, प्रॉब्ली फॉर द राइटर्स, एस्पिरेंट राइटर्स और आर्टिस्ट, एनीबडी. या ओके, और जो जितने भी राइटर्स हैं जो बनना चाह रहे हैं, एक चीज़ मैं सबसे कहना चाहूँगा कि अपने आप पे यकीन रखें. आप जो सोचते हैं, जो करते हैं, जो कहते हैं, उस पे यकीन रखें आप. हेलो. या जी 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 जी. तो आपकी सोच के लिए ऑडियंस है, उस पे यकीन रखें और दिल से जो लिखें बहुत खूब लिखें, क्योंकि राइटिंग कोई मैथमेटिक्स नहीं है. इसमें 2 दूनी 4 नहीं होता, इसमें 2 दूनी 1 भी हो सकता है, 2 दूनी 10 भी हो सकता है. बिलीव योर सेल्फ, बिलीव योर हार्ट एंड माइंड, एंड देन कीप ऑन राइटिंग. थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी And मच. about that, anyone can join the classes if you. यस यस, तो ऑडियंसेस को मैं बताना चाहूंगी, सो सर इज ऑल्सो टेकिंग ऑनलाइन क्लासेस, क्योंकि कोरोना चल रहा है तो उन्होंने ऑनलाइन क्लासेस लेना शुरू की हैं. सो सर आप एक बार बता दीजिए अपनी क्लासेस के बारे में, वेयर दे कैन Yeah, ज्वाइन. well, they can join through you. That's not an issue at all. So you can just guide everyone जो भी आपके साथ आते हैं. और मैं it's about script writing, screenplay writing, because it's about television writing. It's about daily soap writing. It's about episodic stories writing. It's about film writing, web series writing. मेरी एक वेब सीरीज चल रही है, आप देखें इस पे 26/11 Z5 के ऊपर, वो भी आजकल स्ट्रीम हो रही है. एंड मेरी एक आने वाली सीरीज है विक्टिम्स ऑफ वाटर, उसकी हम शूटिंग करने गए थे अमृतसर, बट कोरोना की वजह से रुक गया. दैट इज ऑल्सो कमिंग. एंड एनी वन, बिकॉज द थिंग इज के एनी वन हु वांट्स टू प्लीज जॉइन मी, दे आर ऑल्सो वेलकम. यू कैन ask the best people to come and join me. That's not an issue at all. So this is the thing. राइटिंग है, राइटिंग हर तरह की होती है, राइटिंग होती है. मैं एक ही आदमी हूँ जो उसको आप लेखक बोलते हैं. आप भी एक ही हैं, पर गुण आप में बहुत हैं. आप अपने पे विश्वास रखिए, अपने को पहचानिए और माँ सरस्वती की दया से आगे बढ़िए. गॉड ब्लेस यू ऑल. थैंक यू वेरी मच सर. आई एम 100% श्योर कि हमारी ऑडियंस को बहुत कुछ सीखने मिला है आपसे. Thank थैंक you. यू वेरी मच. गॉड ब्लेस यू. यस, थैंक यू सर. ओके गाइज, एक्चुअली कॉल कटने ही वाली है, तो आई होप सबको बहुत ही कुछ मिला हो सीखने को, बिकॉज बीइंग अ नॉन राइटर मैं भी काफ़ी कुछ रिलेट कर पा रही थी. आई एम श्योर काफ़ी कुछ सीखने मिला हो. कॉल कटने वाली है, मैं बहुत हरी में हूँ. ठीक है, थैंक यू वेरी मच यहाँ आने के लिए. एंड यस, कल हमारे साथ केनेथ देसाई आएंगे, तो ट्यून इन. एंड या, थैंक यू वेरी मच, यू वर ग्रेट. ओके, एंड एनी अदर अनाउंसमेंट? यस, नाट सम्राट एक कंपटीशन चल रहा है हमारा. सो उसमें किड्स की मोनोलॉग कंपटीशन है. उसके आपको डिटेल्स जो हैं वो हमारे पोस्टर्स में मिल जाएंगी.